वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्. ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் திருச்சுகனூரில் இருந்து நேரலையில் ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ அலர்மேல் போக ஸ்ரீனிவாசர் சமேத அலர்மேல் மங்கை தாயாரின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை சின்னத்திரையில் கண்டு வணங்க அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களுடைய அன்பு கூர்ந்து வரவேற்கிறது. இன்று பிறந்த நாள் மற்றும் மங்கள திருமண நாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் அன்பான பக்தர்களின் மேன்மையின் பொருட்டு தீர்ந்த அடியவர் தம்மை திருத்தி பணிகொள்ள வல்ல ஆர்ந்த புகழ் அச்சுதனை அமரர் பிரானை எம்மானை அவனை திருவடி பணிந்து பிரார்த்திக்கும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் அனைத்து பக்தர்களையும் இருகரங்கள் கூப்பி வரவேற்கின்றது. சார்பு நமக்கென்றும் சக்கரத்தான் தன்துழாய் தார்வாழ் வரை மார்பன் தான் முயங்கும் காரார்ந்த வானவரும் மின்னிமக்கும் வன் தாமரை நெடுங்கண் தேனமரும் பூமேல் திரு என்று 3ஆம் திருவந்தாதியில் பேயாழ்வார் சாதித்தருளியுள்ளதை இப்பொழுது முந்துர முன்னம் அர்ச்சக சுவாமி விஸ்வக்சேன ஆராதனை பூசுத்தி இவற்றை முந்துர முன்னம் செய்வித்து பின்பு திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு உரிய கிரமங்களை ஆகம முறைப்படி செய்ய இருக்கின்றார். இப்பொழுது சற்று இந்த ஆழ்வாரின் பாசுரத்தை அனுபவிப்போம். நாம் பற்றியிருக்க வேண்டியது தாயாரின் திருவடியினைகளை என்றென்றும். தாயார் என்றென்றும் பெருமானின் மலை போன்ற பெரிய மார்பில் அகலையில்லேன் இறையும் என்று உறைந்திருப்பவள். பொலிந்து இருண்ட கார்வானின் மின்னல் போல் தோன்றி மலிந்து வீற்றிருக்கின்றாள் இந்த தாயார். பெருமானின் திவ்ய திருமார்பில் தாயாரின் திருக்கண்கள் எப்பொழுதும் அகலையில்லேன் என்று வீற்றிருப்பது எதற்காக என்று ஆழ்வார் சாதித்தருளியது. பக்தர்கள் இவளுடைய நோக்கில்தான் அருளை பெற இயலும். ஆகவே என்றும் மாறாது மார்பில் அமர்ந்து கொண்டு எதிர்வரும் பக்தர்களை கண்டு அவருடைய குறைகளை தீர்க்கவே இவள் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றாள். தாயாரின் திருக்கண்கள் அழகிய தாமரை பூ போல நீண்டு அகன்றிருக்குமாம் பக்தர்களை நோக்கிக் கொண்டு இருக்க தன்னடியார் திறத்தை என்றும் கருணை புழிவதற்காக பெருமானின் திருமார்பை விட்டு அகலாதிருக்கின்றாள். எக்காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் அடியார்களுக்கு புகலிடமாக இருக்க தாயார் தயார் நிலையில் வீற்றிருக்கின்றாளாம். ஆகவே இந்த திருமார்வை தேர்ந்தெடுக்கின்றாள். மேலே கல்யாண உற்சவத்திற்குரிய வேத கோஷத்தை சற்று செவிமடுத்து அனுபவிப்போம். जगति ज्योतिः वै गायत्री गौः द्रष्टुक आयुः जगति यद् एते स्तोमाः भवन्ति देवयानेनेति देवायनेन एव तद् पथायन्ति समानं सामा भवति देवलोक इति देवलोकः वै सामा देवलोकादिति देवलोकादेन देवानायन्ति अन्याः अन्या अन्या इत्यन्याः अन्याः रुचः भवन्ति वै रुचः मनुष्यलोकादिति मनुष्यलोकात् एव अन्यमन्यमित्यन्यम् अन्यं देवलोकम् अभ्यारोहन्त इत्यभि आरोहन्तः यन्ति अभिवर्त इत्यभिवर्तः भवति स्वर्गस्येति सुभागस्य लोकस्य अभिवृत्या इत्यभिवृत्यै अभिजिदित्यभि स्वर्गस्येति सुभागस्य लोकस्य अभिजित्या इत्यभिजित्यै विश्वजिदिति विश्वस्याजित्यै मासि मासीति मासे मासे पृष्ठानि उपेदीयन्ते मासि मासीति मासे मासे अधिग्राह्याहारिक्यन्ते मासि मासीति मासे मासे एवामीर्यं दधति मासा प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै वरिष्ठात् मासा पृष्ठानि उपेदीयन्ते तस्मात् वरिष्ठात् ओषधयः फलं गृह्णन्ति पथायन्ति समानं सामा भवति देवलोक इति देवलोकः वै सामा देवलोकादिति देवलोकात् रामायन्ति अन्या अन्या इत्यन्याः अन्याः ऋचः भवन्ति मनुष्यलोक इति मनुष्यलोकः वै ऋचः मनुष्यलोकादिति मनुष्यलोकात् एव अन्यमन्यमित्यन्यम् अन्यं देवलोकमिति देवलोकम्
अभ्यारोहन्त इत्यभिरोहन्तायन्ते अभिवर्त इत्यभिवर्ताः असाममिति ब्रह्मा सामं भवति वर्गस्येति सुवागस्य लोकस्य अभिवृद्ध्या इत्यभिवृद्ध्यै भवति स्वर्गस्येति सुवागस्य लोकस्य अभिजित्या इत्यभिजित्यै विश्वजिदिति विश्वस्य जित्यै मासि मासेति मासे मासे पृष्ठानि उपेदीयन्ते मासि मासेति मासे मासे अधिग्राह्या इत्यधिग्राह्यन्ते मासि मासेति मासे मासे एव वीर्यं दधति मासां प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठिते उपरिष्टात् मासां पृष्ठानि उपेदीयन्ते तस्मात् उपरिष्टात् फलं गृह्णन्ति शृङ्गाः सति शृङ्गानि शासन्ति तासां दशमासाः निषण्णा इति आसन्ने अथ शृङ्गानि अजायन्ताः अब्रुवन् अरात्स्मा उदिति तिष्ठामा अवेति कामम् अरुष्महि येन कामेनान्यशदामेति इति तासां भूतो वै अब्रुवन् अर्धाः वा यावतीः वा आसामहे एव इमौ द्वादशौ मासौ संवत्सरमिति संवत्सरं सम्पाद्येति सम्पाद्यावदिति तिष्ठामा इति तासां द्वादशे मासी शृङ्गानि प्रेति अवर्तन्त श्रद्धयेति श्रद्धया वा अश्रद्धयेत्यश्रद्धया वा इमाः याः उपराः उभयः वाताः आत्मवन्नयाः च शृङ्गानि असन्वन् याः च ऊर्जम् अवारुन्धतेत्यवा अरुन्धता रुध्नोति दशस्विति दशसु मासु उत्तिष्ठन्नित्युत्तिष्ठन् रुध्नोति द्वादशस्विति द्वादशसु यः एवं वेद पदेन खलु वै एते यन्ति विन्दति खलु वै पदेन यन्नेतत् वै एतत् वृद्धम् अयनं तस्मात् एतत् गोसनीति गोसने प्रथमे मासि पृष्ठानि उपेदीयन्ति मध्यमे उपेदीयन्ति उत्तम इत्युत्तमे उपेदीयन्ति तत् आहुयां वै त्रिः एकस्याह्नः उपसीदन्तीत्युपसीदन्ति दक्रं वै सा अपराभ्यां दोहाभ्यां दुहे अथ कुतः सा धोक्षते यां द्वादश कृत्वा उपसीदन्तीत्युपसीदन्ति इति संवत्सरमिति संवत्सरं सम्पाद्येति सम्पाद्य उत्तम इत्युत्तमे मासि सकृते पृष्ठानि उपेति इयुः तत् यजमानाः यज्ञं पशून् अवेति रुन्धते समुद्रं वै एते अनवारम् अपारं प्रेति प्लवन्ते ये संवत्सरमिति संवत्सरम् उपयन्तीत्युपायन्ति यद्बृहद् बृहद्रथन्तरे इति बृहद् अथन्तरे अन्वर्जेयुरित्यनु अर्जेयुः यथा मध्ये समुद्रस्य प्लवम् अन्वर्जेयुरित्यनु अर्जेयुः तादृक् तत् अनुत्सर्गमित्यनुत्सर्गम् बृहद्रथन्तराभ्यामिति बृहद् रथन्तराभ्याम् इत्वा प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठां गच्छन्ति सर्वेभ्यः वै कामेभ्यः सन्धिरिति सन्धिः दुहे तद् यजमानाः सर्वान् कामान् अवेति रुन्धते सामान्यार्चः भवन्ति मनुष्यलोक इति मनुष्यलोकः वैर्चः मनुष्यलोकादिति मनुष्यलोकात् एव अन्यमन्यमित्यन्यम् अन्यम्
एव नायन्ति अन्यदन्यदित्यन्यत् अन्यत् सामा भवति देवलोक इति देवालोकः वैर्जः देवलोकादिति देवालोकात् एव अन्यमन्यमित्यन्यम् अन्यं मनुष्यलोकमिति मनुष्यलोकम् प्रत्यवरोहन्त इति प्रति अवरोहन्ता यन्ति जगतीम् अग्रे उपेति यन्ति जगतीं वै छन्दागंसि प्रत्यवरोहन्तीति प्रति अवरोहन्ति आग्रयणम् बृहद् पृष्ठानि त्रयस्त्रिगंसमिति त्रयः त्रिगंसम् सोमाः तस्मात् जायागंसं गनीयान् प्रत्यवरोहतीति प्रति अवरोहति वैश्वकर्मण इति वैश्वकर्मणः गृह्यते विश्वानि एव तेन कर्माणि यजमानाः अवेति रुन्धते आदित्यः गृह्यते यं वै अदितिः अस्याम् एव प्रतीति तिष्ठन्ति अन्योन्यैत्यन्यः अन्यः गृह्यते इति मिथुनत्वायेति मिथुनत्वाय प्रजात्यायिति प्रजात्यै अवान्तरमित्यवान्तरं वै दशरात्रेणेति दशरात्रेण प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रेति अजायतायत् दशरात्र इति दशरात्रा भवति प्रजा इति प्रजाः एव तत् यजमानाः सृजन्ते एजेतां ह वै उदङ्गः सौर्बायना सत्रस्य ऋद्धिम् उवाच यत् दशरात्र इति दशरात्रायत् दशरात्र इति दशरात्रा भवति सत्रस्य ऋद्ध्यै अथो इति यत् एव पूर्वेषु आश्रितासो विलोमेति विलोमा क्रियते तस्य एव एषा शान्तिः यदि सोमो सगं सुताविति संसुतो स्यादां महति रात्र्यै प्रातरनुवाकमिति प्रातः अनुवाकम् उपाकुर्यादित्युपाकुर्यात् पूर्वः वाचं पूर्वः देवताः पूर्वः छन्दागंसि वृङ्क्ते वृषन्वतीमिति वृषन्नेवते प्रतिपदमिति प्रतिपदं कुर्यात् प्रातः सवनादिति प्रातः सवनात् एव येषाम् इन्द्रं वृङ्क्ते अथो इति खलु आहुः सवनमुखे सवनमुख इति सवनमुखे सवनमुखे कार्या इति सवनमुखात् सवनमुखादिति सवनमुखात् सवनमुखात् एव येषाम् इन्द्रं वृङ्क्ते संवेशायेति संवेशाय उपवेशायेत्युपवेशाय गायत्र्याः तृष्टुभः जगत्याः अनुष्टुभ इत्यनुष्टुभः पङ्क्त्याः अभिभूत्या इत्यभिभूत्यै स्वाहा छन्दागंसि वै संवेश इति संवेशः उपवेश इत्युपवेशः छन्दोभिरिति छन्दः भिः एव येषाम् கார்வானில் மின்னல் போல் தோன்றி மலிந்து வீற்றிருக்கின்றாள் இந்த தாயார் எம்பெருமானின் திருமார்பிலே. பெருமானின் திவ்ய திருமாலில் தாயாரின் திருக்கண்கள் அழகிய தாமரை பூ போல நீண்டு அகன்றிருக்குமாம். தன்னடியார் திறத்தே என்றும் கருணை பொழிவதற்காக பெருமானின் திருமார்பை விட்டு அகலாது இருக்கின்றாள். எக்காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் அடியார்களுக்கு புகலிடமாக இருக்க தாயார் எந்த அடியவர் தன்னை அழைப்பானோ என்று காத்திருந்து அனுகிரகிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறாள். தயார் நிலையில் இருக்கிறாளாம். பெருமாள் திருமொழி திருச்சங்கு ஏந்தியவன் திருவாடி திருச்சங்கு ஏந்தியத பெருமான் திருத்துழாய் மாலையும் இவையும் அனைத்தும் அணிந்து கொண்டு அதை அத்தனையும் பிராட்டியும் அணியுமாறு தானும் சேர அணிந்து கொண்டிருக்கின்றாள். இவை எல்லாவற்றையும் விட தேனமரும் பூமேல் திருவானத் ஸ்ரீ அலர்மேல் மங்கையின் மணாளன் என்பதே பிரதானமான பரத்வ சின்னமாக வேதங்கள் அறுதியிட்டு கூறுகின்றது என்பதே ஸ்ரீ பேயாழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்தாக அமைந்துள்ள பாசுரம் இது. தாயார் ஸ்ரீ அலர்மேல் மங்கை உள்ள பல வகை பெருமைகளுக்கு வேத வாக்கியங்கள் ஆதாரமாக உள்ளன எனலாம்.
உலகில் தாயாருக்கு யாவரும் அறிந்த ஸ்ரீ என்ற பெயர் ஒன்றே அனைத்து பெருமைகளுக்கும் பொருந்தி இருக்கின்றது என்பர். மிகுந்த பொருள் செறிவு உடையது ஸ்ரீ என்ற திருநாமம். அகிர்புந்திய சம்ஹிதையில் ஸ்ரயந்தீம் ஸ்ரீயமானாஞ்ச ஸ்ருண்வதீம் ஸ்ருணதீமபி ஸ்ருணாதி நிகிலான் தோஷான் ஸ்ருணாதி சகுணைஹி ஜகத் ஸ்ருணாதி ச குணைர் ஜகத் எல்லாவற்றும் ச என்ற சகாரம் எதற்காக வந்தது என்று பிற்பாடு சொல்கின்றேன். ஸ்ரீயதேச்ச அகிலைஹி நித்தியம் ஸ்ரயதேச்ச பரம்பதம். இதை நன்றாக செவிமடுக்க வேண்டும். அனைத்து பக்தர்களும் உயர்ந்த பொருள் செறிவு உடையது. செவிமடுத்தாலே போரும் சகல ஐஸ்வர்யங்களும் உடனே வந்து சேரும். ஸ்ரயந்தீம் ஸ்ரீயமானாஞ்ச ஸ்ருண்வதீம் ஸ்ருணதீமபி ஸ்ருணாதி நிகிலான் தோஷான் ஸ்ருணாதி ச குணைர் ஜகத் ஸ்ரீயதே ச அகிலைஹி நித்தியம் ஸ்ரயதே ச பரம்பதம். நித்தியம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நித்தியபடி அதை அவளை நினைத்து கொண்டிருந்தாலே போரும். கோவிந்த நாமத்தை சொல்லுவதை போல சேர்த்து அலர்மேல் மங்கை தாயார் சமேத கோவிந்தன் என்று சொன்னாலே போதும். இது அவள் ஸ்ரீ என்ற அந்த திருநாமத்திற்கு உரிய அனைத்து பலன்களும் தன்னடைவே உங்களை வந்து சேரும். ஸ்ரயந்தீஹி ஜீவாத்மாக்களான அடியார்களின் குறைகளை தன் பதியான ஸ்ரீ கோவிந்த கோபாலனிடத்தை எடுத்துச் சொல்லி நம் குறைகளை தீர்த்துவிட அவனை விட்டு என்றும் அகலாதிருக்கின்றாள் என்றபடி ஸ்ரீயமானாக அடியார்கள் தங்களுடைய வேண்டுதல்களை தாயாரிடம் எடுத்துச் சொல்வதற்காக தாயாரை விடாது பெற்றிருக்கின்றனர். ஆக ஸ்ரயதே ஸ்ரீஹி என்கிறபடியே பிரானை விட்டு அகலாது இருப்பவள் இந்த தாயார். ஆகையால் ஸ்ரீஹி என்ற திருநாமத்தை என்று பெற்றவளாகின்றாள். அதனால் தானே பெருமானிடத்தை, அதாவது தாயார் அனுகிரகிக்கலாம், ஆனால் பிரானோடு ஒரு தாயும் தந்தையுமாக இருந்து குழந்தைகளை ரட்சித்தால் எத்தனை உயர்வோ அத்தனை உயர்வு என்று எதிர்பார்த்து இவள் பிரானோடு சேர்ந்திருந்து செய்ய வேண்டும் என்று காத்திருக்கின்றாள். இப்போ அர்ச்சக சுவாமி தாயாருக்கு அணிய இருக்கும் இந்த திருமாங்கல்யத்திற்குரிய கிரமங்களை செய்ய இருக்கின்றார். மேலே அடுத்தது ஸ்ரீயதே இது ஸ்ரீஹி அடியார்கள் தங்கள் குறைகளை வேண்டுதல்களை தங்கு தடையின்றி தாயாரிடம் முறையிட்டு வேண்டியதை பெறும் வகையில் அடியார்கள் இடத்தை அன்பு உடையவளாக இருக்கிறாள். அதாவது இவளை நெருங்குவது எளிதாக இருக்கும், பயப்பட தேவையில்லை. ஆகையரே ஸ்ரீ என்னும் உயர்ந்த திருநாமத்தை உடையவளாக இருக்கின்றாள் என்று வேதம் அறுதிட்டு சொல்கிறது. ஸ்ருணதீம் தன்னை வேண்டி நிற்கும் அடியார்களின் தோஷங்களையும் வேருடன் களைந்தெறிகிறார். ஸ்ருண்வதி அடியார்களின் அபய குரல்களை செவிமடுத்து அதிவிரைவில் தீர்க்கவும் செய்கின்றாள் இந்த தாயார். ஸ்ருணாதி நிகிலான் தோஷான் தன்னை அடைந்த அடியார்களின் ஜன்மாந்திர தோஷங்களையும் போக்குகின்றாள். ஸ்ரீயதே ச அகிலைஹி நித்தியம் அடியார்கள் அனைவராலும் எப்போதும் சரண் அடையத்தக்கவளாக இருக்கின்றாள். மேலே ஸ்ரயதே ச பரம்பதம் என்பதற்கு பரமனான ஸ்ரீ வெங்கட வரதனுடன் எப்போதும் சேர்ந்தே இருப்பது என்றும் கூடியிருந்து பக்தர்களை அனுகிரகிக்க, அதாவது திவ்ய தம்பதிகளாக அமிதரமாக உத்தேசித்து அனைவரையும் சகல கல்யாணங்களையும் அருள பிரார்த்திக்க வேண்டும். அருள்வாள், நிச்சயம் அனுகிரகிப்பாள். மேலே வேத சப்தத்தை சற்று செவிமடுப்போம். षडहैरिति षड् अहैः मासाने सम्पाद्येति सम्पाद्य अहवदिति सचन्ति षडहैरिति षड् अहैः मासाने सम्पश्यन्तीति सम्पश्यन्ति अर्धमासैरित्यर्धमासैः मासाने सम्पाद्येति सम्पाद्य अहवदिति सचन्ति अर्धमासैरित्यर्धमासैः मासाने सम्पश्यन्तीति सम्पश्यन्ति अमावास्येत्यमावास्यया मासाने सम्पाद्येति सम्पाद्य उदिति सृजन्ति अमावास्येत्यमावास्यया हि मासाने सम्पश्यन्तीति सम्पश्यन्ति वै पूर्णे पूर्णमास्येति पूर्णमास्या मासाने सम्पाद्येति सम्पाद्य उदिति सृजन्ति पौर्णमास्येति पौर्णमास्या हि मासाने सम्पश्यन्तीति सम्पश्यन्ति वै पूर्णे
सिञ्चतीत्या सिञ्चति परेति सः सिञ्चति यः पूर्णात् उदच्छतीत्युत अचति प्राणमिति प्राणम् अस्मिन् सः दधाति यत् पौर्णमास्येति पौर्णमासाने सम्पाद्येति सम्पाद्य उत्सृजन्तीत्युत सृजन्ति संवत्सरायेति संवत्सराय एव तत् प्राणमिति प्राणम् दधति तत् अन्विति सत्रिणः प्रेति अनन्ति यत् न उत्सृजेयुरिच्युत यथा तृतीः उपनद्ध इत्युपनद्धः विपततीति विपतति एव संवत्सरमिति संवत्सरः वीति पतेत् आर्तिम् येति यत् पौर्णमास्येति पौर्णमास्यामासान् सम्पाद्येति उत्सृजन्तीत्युत सृजन्ति संवत्सरायेति संवत्सराय एव तत् उदानमित्युत अनम् दधति तत् अन्विति सत्रिणः उदिति अनन्ति न आर्तिम् येति ऋच्छन्ति पूर्णमास इति पूर्णमासे वै देवानां सुतः यत् पौर्णमास्येति मासाने सम्पाद्येति सम्पाद्य उत्सृजन्तीत्युत सृजन्ति देवानाम् एव तत् यज्ञेन यज्ञम् प्रत्यवरोहन्तीति प्रति अवरोहन्ति वीति वै एतत् यज्ञम् चिन्तन्ति यद् षडः सन्ततमिति षडः सन्ततम् अचाच्युत सृजन्ति प्राजापत्यमिति प्राजापत्यम् पशौ येति लभन्ते प्रजापतिरिति प्रजापतिः सर्वाः देवताभिः यज्ञं समिति तन्वन्ति यन्ति वै एते सवनात् ये सृजन्तीत्युत सृजन्ति तुरीय खलु वै एतत् सवनं यत् सान्नाय्यमिति सान्नाय्यं यत् सान्नाय्यमिति सान्नाय्यं भवति तेन एव सवनात् नायन्ति समुपहूयेति उपहूय भक्षयन्ति एतत् सोमवीथा इत्येतत् सोमवीथा हि एतरिः यथायतनमिति यथा आयतनं वै एतेषां सवनभाज इति सवनभाजः देवताः गच्छन्ति ये सृजन्तीत्युत सृजन्ति अनुसवनमित्यनुसवनं पुरोडासाने निरति वपन्ति यथायतनादिति यथा आयतनाद् एव सवनभाज इति सवनभाजः देवताः अवेति रुन्धते अष्टाकपालानित्यष्टाकपालानि प्रातः सवन इति प्रातः सवने एकादशकपालानित्येकादशकपालानि माध्यन्दिने सवने द्वादशकपालानिति द्वादशकपालानि तृतीयसवन इति तृतीयसवने छन्दागंसि एव आप्त्वा अवेति रुन्धते वैश्वदेवमिति वैश्वदेव चरं तृतीयसवन इति तृतीयसवने निरति भवन्ति वैश्वदेवमिति वैश्वदेव वै तृतीयसवनमिति तृतीयसवनं तेन एव तृतीयसवनादिति तृतीयसवनायन्ति उत्सृज्यामित्युत सृज्या न उत्सृज्यामित्युत सृज्या इति भीमागं सन्ते ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः तत् ओ आहो उत्सृज्यमित्येव इति अमावास्यायामित्यमावास्यायां च पौर्णमास्यामिति पौर्णमास्यां च उत्सृज्यमित्युत सृज्यम् इति आहुः एते इति यज्ञं महतः इति ते इति तो वावान उत्सृज्ये
इत्युत सृज्ये इति आहूये इति अवान्तरमित्यवा यज्ञं भेजाते इति या प्रथमाम्यष्टके दिवि अष्टका तस्याम् उत्सृज्यमित्युत इति आहो येषः वै मासः विशर इति विसरः इति न आदिष्टमित्यादिष्टम् उदिति सृजेयो यत् आदिष्टमित्यादिष्टम् सृजेयुरित्युत सृजेयो यादृशे पुनः पर्याप्लावगिति परि आप्लावे मध्ये षडहस्येति षडे अहस्या सम्पद्येते सम्पद्येत षडहैरिति षडे अहैः मासान् सम्पाद्येति सम्पाद्य यत् सप्तमम् अहः तस्मिन् उदिति सृजेयो तद् अग्नये वसुमत इति वसुमतेः पुरोडासम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालः निरति वपेयोः ऐन्द्रं दधि इन्द्राय मरुत्वदे पुरोडासम् एकादशकपालमित्येकादशकपालः वैश्वदेवमिति वैश्वदेवं द्वादशकपालमिति द्वादशकपालः अग्नेः वै वसुमत इति वसुमतः प्रातः सवनमिति प्रातः यत् अग्नये वसुमत इति वसुमतेः पुरोडासम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालः निर्वपन्तीति निवपन्ति देवताम् एव तद् भागिनीं कुर्वन्ति सवनम् अष्टाभिः उपेति यन्ति यत् ऐन्द्रं दधि भवति इन्द्रम् एव तत् भागधेयादिति भागा चावयन्ति इन्द्रस्य वै मरुत्वतः माध्यं दिनं सवनं यत् इन्द्राय मरुत्वते पुरोडासम् एकादशकपालमित्येकादशकपालः निर्वपन्तीति निवपन्ति देवताम् एव तद् भागिनीं कुर्वन्ति सवनम् एकादशभिरित्येकादशभिः उपेति यन्ति विश्वेषाम् देवानां प्रभुमतामित्युभूमताम् तृतीयसवनमिति तृतीयसवनं यत् वैश्वदेवमिति वैश्वदेवं द्वादशकपालमिति द्वादशकपालम् निर्वपन्तीति निवपन्ति देवताः एव तद् भागिनीः कुर्वन्ति सवनम् द्वादशभिरिति द्वादशभिः उपेति यन्ति प्राजापत्यमिति प्राजापत्यं वशो येति लभन्ते यज्ञः वै प्रजापतिः यज्ञस्य अननुसर्गायेत्यननो सर्गाभिवर्त इत्यभिवर्तः इतः षट् मासः ब्रह्मसाममिति ब्रह्मसामं भवति ब्रह्म वै अभिवर्त इत्यभिवर्तः ब्रह्मणा एव तद् सुवर्गमिति सुवहागम् लोकम् अभिवर्तयन्त इत्यभिवर्तयन्तः यन्ति प्रतिकूलमिति प्रतिकूलम् इव हि इतः सुवर्ग इति सुवहागः लोकः इन्द्रकृतो नः येति भरापिता पुत्रेभ्यः यथा नः अस्मिन् पुरोहतेति पुरोहतायामनि जीवाः ज्योतिः इति अमुतः आयतामित्यायतां षट् मासः ब्रह्मसाममिति ब्रह्मसामं भवति अयं वै लोकः ज्योतिः प्रजेति प्राजा ज्योतिः इमम् एव तत् लोकम् पश्यन्तः अभिवदन्त इत्यभिवदन्तः येति यन्ति देवानां वै अन्तं जग्मुषाम् इन्द्रियं वीर्यम् अवेति अक्रामते तद् क्रोशेन अवेति अरुन्धता तद् क्रोशस्यमिति क्रोशात्वं यत् क्रोशेन धात्वालस्य अन्ते स्तुवन्ति यज्ञस्य एव अन्तं गत्वा इन्द्रियं वीर्यम् अवेति रुन्धते सत्रस्यभ्या आहवनीयस्येत्याहवनीयस्य स्तुवन्ति अग्नि एव उपद्रष्टारमित्युपद्रष्टारं कृत्वा उपेति यन्ति प्रजापतेर्हृदयेनाध्यानगिति हवीदाने अन्ताः स्तुवन्ति प्रेमाणो एव अस्या गच्छन्ति श्लोकेन पुरस्तात् सदसः स्तुवन्ति अनुश्लोकेन पश्चात् यज्ञस्य एव अन्तं गत्वा श्लोकभाज इति श्लोकभाजः भवन्ति नवभिरिति नवभिः
अध्वर्योदिति गायते न वा वै पुरुषे प्राणा इति प्राणाः प्राणानिति प्राणान् एव यजमानेषु दधाति सर्वाः इन्द्रियाः भवन्ति प्राणेषु 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 एव इन्द्रियाणि दधति अप्रतिहिताभिनित्य अप्रतिहिताभिः उदिति गायते तस्मात् पुरुषः सर्वाणि अन्यानि शेषणः अङ्गानि प्रतीति अचति शिरः एव पञ्चदशमिति पञ्चादशां भवति रथन्तरमिति रथन्तरं भवति इन्द्रियम् एव अवेति रुन्धते सप्तदशमिति सप्तदशं बृहते अन्नाद्यस्तेत्यन्नात् अवरुद्ध्या इत्यवरुद्धैः अथ यदि प्रेति एव तेन जायन्ते एकविकंशमित्येकविकंशम् भद्रं पदास्मिति द्विपदासोपदेशेत्या इति प्रदेशिते पत्नयः उपेति गायन्ते मिथुनत्वायति मिथुनत्वाय प्रजात्या इति प्राजात्येः प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजा इति प्रजाः असृजताः अकामयता आसाम् अहं राज्यं परितीयाहम् इति तासाः राजनेन एव राज्यं परिति ऐते तत् राजनस्य राजनत्वमिति राजनत्वम् राजनां भवति प्रजानामिति प्रजानाम् एव तद् यजमानाः राज्यं परितीयन्ते पञ्चविकंशमिति पञ्चविकंशं भवति प्रजापतेरिति प्रजापतेः आप्ते पञ्चभिरिति पञ्चभिः तिष्ठन्तः सुवन्ति देवलोकमिति देवलोकान् एव अभीति जयन्ति पञ्चभिरिति पञ्चभिः आसीनाः लोकमिति लोकम् एव अभीति जयन्ति दशासमिति पद्यन्ते दशाक्षरेति दशाक्षराः विराटिति विराट् अन्नं विराटति विराटे विराजेति विराजा एव अन्नाद्यमित्यन्नाद्यम् अवेति रुन्धते पञ्चधेति पञ्चधा विसत्येति विनिसत्य पञ्चदिशा दिक्षु एव प्रतीते तिष्ठन्ति एकैकयेत्येकया अस्तुतया समायन्ते दिशाम् आयन्ते दिग्भैति दिग्भ्यः एव नाद्यमित्यन्नाद्यं समिति भरन्ति ताभिः उत्गातेच्युतुगाता उदिति गायति दिग्भैति दिग्भ्यः एव अन्नाद्यमित्यन्नाद्यं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानते संकल्पमानं प्रकल्पमानमपकल्पमानमपकल्प्तं क्लब्धं स्वेजोपसीजाय सम्भूतं भूतं चित्रकेतुप्रभानाभां सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वानादभग्यस्तवन्नभितवन् रोचनो रोचमानशोभन शोभमान कल्याणः
ॐ आप्यैः पञ्चभिरिति पञ्चाभिः तिष्ठन्तः सुवन्ति देवलोकमिति देवालोकम् एवाभिधीजयन्ति पञ्चभिरिति पञ्चाभिः आसीनाः मनुष्यलोकमिति मनुष्यालोकम् एवाभिधीजयन्ति दशासमिति पद्यन्ते दशाक्षरेति दशा अक्षराः विराडिति विराट् अन्नः विराडिति विराट् विराजेति विराजाः एव अन्नाद्यमित्यन्नाहज्यम् अवेति रुन्धते पञ्चधेति पञ्चाधा विनिषद्येति विनिषद्या सुवन्ति पञ्चादिशः दिक्षु एव प्रतीति तिष्ठन्ति एकैकयेत्येकया एकया अस्तुतया समायन्तीति समायन्ति दिग्भ्यैति दिग्भ्यः एव अन्नाद्यमित्यन्नाहद्यमिति भरन्ति ताभिः उद्गातेच्युरुगाता उदिति गायति दिग्भ्यैति दिग्भ्यः एव अन्नाद्यमित्यन्नाहद्यम् संभृत्येति संभृत्य तेजः आत्मन् दधते तस्मात् एकः प्राणगिति प्राणः सर्वाणि अङ्गानि अवति अथो यदि यथा सुपर्ण इति सुपन्नः उत्पदिश्यन्नित्युपदिश्यन् शिरः उत्तममित्युत्तमम् कुरुते एवम् एव तद् यजमानाः यजमानामिति प्राजानाः तमा इत्युत्तमाः भवन्ति आसन्ति मिथ्यासन्ति उद्गातेत्युद्गाता चेति रोहति साम्राज्यमिति साम्राज्यम् एव गच्छन्ति प्रेङ्खं होता नागस्य एव पृष्ठं रोहन्ति कूर्चौ अध्वर्योः गर्भस्य एवाभिष्टमं गच्छन्ति एतावन्तः वै देवलोका इति देवालोकाः तेषु एव यथा पूर्वमिति यथा पूर्वं प्रतीति तिष्ठन्ति अथो इति आक्रमणमित्याक्रमणम् एव तद् सेतुः यजमानाः कुर्वते स्वर्गस्येति सुवः कस्य लोकस्य समस्या इति अष्टैः ज्योतिक्षापतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशेषण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणिरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमान् जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सत्त्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा।
विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ